Welcome to Indian Masterminds. Does law lead to justice? The 3 new criminal laws were enacted, as PM Modi puts it, to eradicate the symbol of slavery and create a new confident India. But has something really changed? Or is it once again the proverbial new wine in old bottle? Bharatiya Nyaya Sanhita has replaced Indian Penal Code IPC. Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita has replaced CRPC. And Indian Evidence Act has been replaced by Bharatiya Sakshya Sanhita. All the 3 laws were indeed archaic. IPC was implemented on January 1, 1862, CRPC on 1st April 1974, and Indian Evidence Act on March 1st, 1874. Are they just Hindi translation of the old laws? Jugglery of words? Just an eyewash to win brownie points? Or really a new structure is emerging over the old edifice of archaic laws? I too am as confused as any common man. To get a clearer picture on these vexed issues, I am joined in the studio by 2 persons of eminence who know the law like back of their hand. The first person is 1976 batch IPS officer Mr. Yashovardhan Jha Azad. Besides serving in the field, he was on the Joint Intelligence Committee, JIC, the apex body of intelligence analysis for the government of India. He also moved to Intelligence Bureau as its special director in 1997. The other person is a rare blend of bureaucrat and corporate as well as lawyer. He is a former IRS officer, Mr. Virag Gupta, who has worked as advisor with multinational consultancy firm Ernst & Young, before resigning to do LLB and practice law in the Supreme Court. Both of them are regular media columnists and TV panelists. A very warm welcome to both of you, sir. तो सबसे पहले मैं आप ही से पूछता हूँ कि ये बताइए, ये जो 3 नए कानून लागू हुए हैं, तो ये महज कॉस्मेटिक बदलाव है या सचमुच कुछ बदल रहा है? नहीं, इन कानूनों के पीछे 4 तरह की बड़ी मंशा है। पहला, एक अंग्रेजों के समय का जो साम्राज्यवादी कानून चले आ रहे थे, उनकी लीक को खत्म करना, ये एक बड़ी मंशा थी और उसमें एक इतिहास में नाम दर्ज कराने का कहीं न कहीं से एक राजनीतिक भाव रहा होगा। दूसरी बड़ी मंशा ये थी कि जब कानून बने थे उस समय इंटरनेट, मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था और अब सब आ गया है, तो नए कानूनों में उन सारी चीज़ों का समावेश करने का प्रयास किया गया है। तीसरा, कि जो महिलाओं, बच्चों के बारे में उनको सुरक्षा और संगठित अपराध के बारे में प्रावधान, कम्युनिटी सर्विस जैसी चीज़ों को किया गया है, ये तीसरी बड़ी मंशा है। और चौथा एक है कि जल्द न्याय, तो जल्द न्याय के बारे में भी प्रावधान है। तो इसके पूरे उद्देश्य अच्छे हैं, लेकिन उसके लिए जिस तरीके की एक एक्सरसाइज करनी चाहिए थी, जिस तरह का होमवर्क करना चाहिए था, जिस तरीके से राज्यों के साथ परामर्श करना चाहिए था, उस तरीके से नहीं करने से ये काउंटर प्रोडक्टिव हो गए हैं और जो इसका पूरा मकसद है वो मकसद सफल होता नहीं दिख रहा है। इसलिए कह सकते हैं, एक रिसर्च आई है कि इन कानूनों में 3/4 से ज़्यादा पुराने प्रावधान हैं और उनको रिशफल करने की वजह से एक कहीं न कहीं से एक कानूनी तौर पर अराजकता बढ़ने का एक खतरा बढ़ गया है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये एक नई बोतल में पुरानी शराब है। तो ये सारी बातें हैं और आने वाले समय में राज्यों के साथ कैसे सहयोग मिलेगा, किस तरीके से थानों को डिजिटल एविडेंस के लिए जोड़ा जा सकेगा, किस तरीके से सॉफ्टवेयर अपडेट होंगे, कैसे पुलिस, जज और वकीलों को इससे ट्रेंड किया जा सकेगा, किस तरीके से इन कानूनों को सख्ती से लागू किया जाएगा जिससे जल्द न्याय मिले, उससे इनकी सफलता का निर्धारण होगा। सर, I want to ask you, how do these laws impact as citizen, the police and the courts? Well, I think it has tremendous impact on the common man. And, what Mr. Gupta said, I largely agree with that view because it's also very progressive in some respects that technology has been given a great boost, and I'm very happy. It laid investigation.
For the common man, I think largely the ease of filing FIRs is something which is laudable. You can file an FIR from any place. The zero FIR facility will be attended to. The common man also has an advantage in the sense, you see, all these laws, basically, there is an overarching right which has been given in the Constitution under Article 21. So any law you make somehow has to take care that those rights are protected. For example, when you are arrested in a police station, then you should be informed. So it is the duty of the police officer now, at least, that when a common man is arrested, somebody will be informed. It's mandatory. So certain things like this are certainly very good. But then the other things are also there, which will impact the common man. The arrest of a person on reasonable apprehension is there. So that is, I think, 35 BNS or something. So largely, I would say, where you have a good beginning, there are also certain things which are, and there are so many other things. I mean, you talk about sedition. Sedition, again, has been replaced. Sedition was kicked out by the Supreme Court, but it has come back in another form in 152, where, some kind of apprehension, an attack against sovereignty and the unity and integrity. Now, these are things which do not find a place in democracy. So I said that way a common man will be impacted. And I think that the new criminal law regime is going to impact the common man hugely, either way. Adversely and purposely in some respects, as I said. The advantage of filing an FIR, advantage of these. Two things, sir. First, zero FIR provision was already there. Yes. Secondly, now in the new criminal law, it is mandatory, or means the police may go for some investigation before filing an FIR. So FIR is not mandatory now. So that gives a lot of discretionary power to the police. It may say we are conducting investigations. Well, you see, also in Lalita Kumari judgment, which was there, they said the FIR must be lodged immediately, except in certain exceptional cases where you need, like, matrimonial dispute or something which is real estate issues and things like that. In this particular case, you're right, 3 to 7 years. There's a preliminary inquiry which can be done by the police. There is a lot of discretionary power to the police. Now, see, in this respect, there are two ways of looking at it. I think in 21st century, either you trust the police or you don't trust the police. Even now, the statement of the police is not acceptable. You're not making police commissionerates. So, what is driving bad police is the bad politics. It's not police per se. You get my point? But yes, I agree, discretion is there. And one thing more. The one disadvantage of easy filing of FIR is that you will get a lot of FIRs which will need preliminary inquiry. That much also I get it. Because, anybody in Kerala can file an FIR and give it, which happened to him while coming from train from Madhubani. So he has the power to initially do a preliminary inquiry. How will he do it? So there are issues. There are a lot of issues, and I'm telling you, this new law is a work in progress. Sir, ये बताइए कि स्टेट सब्जेक्ट है पुलिस, लेकिन ये कॉन्करेंट लिस्ट पे है लॉस, तो ऐसे में कितना आसान होगा कि किसी भी राज्य के लिए, या कितने राज्य इसको लागू कर रहे हैं, क्योंकि 1 जुलाई से लागू हो चुका है, तो करीब 15-20 दिन हो गए, तो आप कितना लग रहा है, कितने राज्य इसको लागू कर पा रहे हैं, कितने राज्य लागू करेंगे, नहीं करेंगे, क्या उनके पास ये भी डिस्क्रिप्शन है कि वो ना करें? नहीं, पहले नंबर पर उनके पास डिस्क्रिप्शन नहीं है। अगर एक सेंट्रल लॉ है तो या तो वो उस सेंट्रल लॉ में अपनी स्टेट अमेंडमेंट लेकर के आए, जिसके लिए कि उनको राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए पड़ेगी, और जब तक वो अपना अमेंडमेंट नहीं लाते हैं तो इन कानूनों का पालन करना उनकी संवैधानिक मजबूरी है। लेकिन हमको 5-6 जरूरी तथ्यों को समझना चाहिए इस पूरे कानून पर चर्चा करने से पहले, कि पहले नंबर पर 3 में से 2 ही कानून अंग्रेजों के समय के हैं। तीसरा कानून जो CRPC है वो 1973 में आज़ादी के बाद उसमें बदलाव हो गया था, तो सिर्फ 2 ही कानूनों को किया है।
दूसरी बात कि पूरी समस्या की जड़ है अदालत और पुलिस में, जहां पर कि लोगों को सही तरीके से न्याय नहीं मिलता है। वहां पर दो बातें हैं। पहला कि जो पुलिस एक्ट है हमारा 1861 का, उस पे बदलाव नहीं किया गया है। प्रकाश सिंह जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से मॉडल पुलिस लॉ भी बना था, राज्यों का सब्जेक्ट है, न ही विपक्ष शासित राज्य, न ही सत्ता पक्ष वाले राज्य कोई भी इस पे पुलिस के पावर को कम नहीं करना चाहते हैं। तो जब तक पुलिस एक्ट में बदलाव नहीं होगा तब तक ये पूरा जो हमारा सिस्टम है वो साम्राज्यवाद के दायरे से बाहर नहीं होगा। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कैपेसिटी बिल्डिंग। आप कोई भी कानून बना दीजिए, लेकिन अगर जमीनी हकीकत ठीक नहीं है तो भारत में अगर लगभग 20,000 मजिस्ट्रेट हैं या 18,000 के आसपास थाने हैं, तो उन थानों को आप सॉफ्टवेयर से किस तरीके से जोड़ रहे हैं। अब सारी चीजें आपने कर दी कि डिजिटल एविडेंस इकट्ठा करना है, क्राइम सीन की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, स्टेटमेंट्स को सब वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, लेकिन जो पुलिस अफसर हैं, जो आईओज हैं, उनके पास सरकारी मोबाइल फोन, स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, लैपटॉप नहीं है। तो किस तरीके से कल एविडेंस में उसमें दिक्कत पड़ेगी। अगर लोग अपने निजी फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो उस एविडेंस का दुरुपयोग भी हो सकता है और उसका आगे चल करके अदालत में उसकी मान्यता कैसी होगी मालूम नहीं है। तो जिस तरीके से सरकार ने टेलीकॉम लॉ बनाया, बहुत कंसल्टेशन के बाद बनाया, और 62 सेक्शन में सिर्फ उन्होंने शुरुआत में 39 सेक्शंस को इंप्लीमेंट किया। डेटा प्रोटेक्शन लॉ सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों के जजमेंट के बाद बनाया, कई सालों बाद बनाया, और उसको अभी तक लागू नहीं किया क्योंकि उसके रूल्स फ्रेम नहीं किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जिस हड़बड़ी में लागू किया गया है, इस हड़बड़ी में लागू करने से पहले एक बार राज्यों की सहमति लेना जरूरी था। और जिस तरीके से, और दो बातें तो बिल्कुल गलत हुई हैं। पहला कि जो उन्होंने सारे सेक्शंस को रिशफल कर दिया है, उसकी जरूरत क्या थी। और दूसरा, इस कानून को बनाने में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनका कि अदालती सिस्टम में व्यवहारिक तरीके से उनके पास अनुभव नहीं था। और इसमें दिल्ली में कल अभी वकीलों ने हड़ताल कर दिया, पुलिस वालों के पास संसाधन नहीं है, जजों की इसकी जानकारी नहीं है। तो कानून तो वही होता है जिसको अमल में ला सकें, और एक पुराने जमाने से जो सिस्टम चला रहा है उसको ग्रेजुअली किस तरीके से हम अवेयरनेस क्रिएट करते, कैपेसिटी बिल्डिंग करते, कंसेंट लेते और फिर लागू करते, तो मुझे लग रहा है कि एक बेहतर तरीके से एक ये चीजों को हम एक ट्रांजिशन फेज को खत्म करके एक अच्छी शुरुआत कर सकते थे। लेकिन जिस तरीके से विवाद हो रहे हैं उससे मुझे बड़ा डर लग रहा है कि जो नए अपराध रजिस्टर होंगे। एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि 30 जून के पहले जो अपराध हुए हैं और उनकी एफआईआर 1 जुलाई के बाद हुई है, उनकी एफआईआर किस कानून में होनी चाहिए? क्या बीएनएस कानून होनी चाहिए, आईपीसी में होनी चाहिए? दिल्ली समेत कई राज्यों में पुलिस उनको पुराने कानून में रजिस्टर कर रही है। जो कानून रिपील हो गए उसके तहत कैसे एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, किसी को जानकारी भी नहीं है और जानकारी देने वाला कोई है भी नहीं। तो मुझे लग रहा है कि अच्छा प्रयास गलत तरीके से किया है गया है। आप बताएं कि how difficult as a police officer will it be for the police to deal with two sections for the same offense? ये जो पुराने सेक्शंस हैं प्रोसिक्यूशन के लिए भी, अदालत के लिए भी, तो एक ही क्राइम के लिए जो 30 जून से पहले जितने भी हैं वो ओल्ड सेक्शंस में हैं, 1 जुलाई से नए सेक्शंस में, तो कितना आसान होगा पुलिस के लिए भी और लॉयर्स के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए एंड अदालतों के लिए। देखिए, एडजस्टमेंट करने में टाइम तो लगता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं नहीं समझता कि उतनी ज्यादा दिक्कतें होंगी, क्योंकि देखिए आजकल रेडीमेड रेकनर्स भी मिलने लगे हैं कि पुराने ये क्या कहते हैं लॉ का सब्स्टिट्यूट जो नए वाले में क्या है। एक चीज और क्लियर है, जितने भी क्राइम रजिस्टर किए गए हैं 30 जून के पहले, वो उनका ट्रायल और सारी चीजें की जाएंगी पुराने इससे, और नए वाले इतने रजिस्टर होंगे, नए वाले इसमें होंगे, तो इसमें एक जक्सटापोजिशन तो होगा, ये तो एक्सेप्टेबल। एक केस सुन रही है पुराने कानून का तो अलग सेक्शन है। मेरे इसमें एक छोटा सवाल है कि 30 जून के पहले कोई केस रजिस्टर हो, उसकी जांच 1 जुलाई के बाद हो रही है और उसमें एविडेंसेस और जो उसकी जांच है वो नए सीआरपीसी और जो नया एविडेंस एक्ट जो बीएनएसएस और जो बीएसए है, क्या उसके तहत होगा कि पुराने कानून के तहत होगा? अगर आप नए तरीके से भी करेंगे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, लेकिन आप पुराने तरीके से भी कर सकते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। मैं इस बात को थोड़ा सा, मेरे मन में एक असमंजस की स्थिति है कि एक एफआईआर 29 जून को दर्ज हुई है आईपीसी के तहत और उसकी जांच 1 जुलाई के बाद
नए बीएनएसएस के तहत होगी कि पुराने सीआरपीसी के तहत होगी, आधी जांच क्या पुराने कानून, आधी जांच नए, इन सारी बातों में जैसे अभी एसओपी जारी किया डिजिटल एविडेंस के बारे में, इसके बारे में भी एसओपी गवर्नमेंट को जारी करने की जरूरत थी। जो पहला अपराध दर्ज किया गया 12:15 पे दिल्ली में स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ, और होम मिनिस्टर ने उसके बाद बोला कि नहीं नहीं वो अपराध गलती से दर्ज हो गया और उसको उन्होंने पुराने कानून के तहत खत्म कर दिया। अब प्रश्न इस बात का है कि ग्वालियर में जब 12:10 पर मोटरसाइकिल चोरी का अपराध दर्ज हुआ नए कानून के तहत, तो अपराध हुआ है 30 जून के पहले, और उसका एफआईआर बीएनएस के तहत होगी कि आईपीसी के तहत होगी, मुझे नहीं लगता कि पुलिस हॉल में स्पष्टता है। मैं नहीं समझता हूँ इससे कोई खास। आप बताएं मुझे किस कानून में दर्ज हो गया? बता रहा हूँ। 30 जून के पहले जितने भी अपराध हुए, कितने अपराध ऐसे हैं जो कि ओवरलैप करके आएंगे। एक थाने में करीब 5 या 10 इस तरह के अपराध होंगे, और उन अपराध को आप पुराने इससे करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो स्पष्ट किया ही गया कि पुराना रूल पुराने के लिए रहेगा, नया वाला नए के लिए रहेगा। मैं कोई खास चीज पूछना चाहता हूं जी कि जो लॉ शुड बी फॉर जस्टिस, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, करेक्ट। तो क्या नए कानून से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि न्याय जल्दी मिलेगा? न्याय मिलेगा पहली चीज, और जल्दी मिलेगा? देखिए, दोनों लोगों से एक एक करके पूछता हूं, पहले आप। इसमें देखिए काफी प्रॉब्लम्स इसलिए हैं क्योंकि पुराने जो हमारे पास जो लंबित प्रकरण हैं कोर्ट्स में बहुत ज्यादा है, और मुझे मालूम नहीं किस तरह की बैलेंसिंग एक्ट करेंगे। देखिए, जुडिशरी जो है बराबर हमें तो जरूर बोलते हैं कि भाई पुलिस को सुधार आना चाहिए, लॉयर्स में सुधार आना चाहिए, प्रोसिक्यूशन में होना चाहिए, लेकिन जुडिशरी में क्या सुधार आना चाहिए ये नहीं बताते। और जुडिशियल सिस्टम को डिजिटल टेक्नोलॉजी से बहुत ही ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है, लेकिन कितना उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है या कितने उसमें प्रोसेस अपनाए गए हैं ये हमें नहीं मालूम। इसलिए मैं समझता हूं कि देखिए, नए वाले क्रिमिनल लॉ में तो टाइमलाइंस दिए गए हैं, जैसे कि दिया गया है 45 दिन का ये चार्जशीट के लिए 60 डेज वगैरह वगैरह, लेकिन दोनों को मिला के समय तो तब भी लंबा लगेगा, और इसलिए मैं नहीं समझता कि ये जल्दी से हम इसके ऊपर काबू पा सकें। जी, आप बताएं कि जल्दी। देखिए, पुराने कानूनों में भी समय सीमा निर्धारित की गई थी, चार्जशीट फाइल करने की समय सीमा निर्धारित की गई थी। कई सारे ऐसे कानून हैं अपराध थे जिनकी की समय सीमा निर्धारित की गई थी। सीआईसी संबंधित कानून है या बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसमें कि समय सीमा निर्धारित है, इसका पालन नहीं होता है। इसके बारे में 4 चीजों पर बहुत ज्यादा गंभीरता से विचार विमर्श करने की जरूरत है। पहला ये है कि मुकदमों के बारे में नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी है, और वो 2010 से सिर्फ कागजी फाइलों में कैद है जब तक, क्योंकि सरकार सबसे बड़ी मुकदमेबाज है, और आपराधिक मुकदमे देश में 5.13 करोड़ हैं, जिसमें 70% मुकदमे टोटल मुकदमों में से, जो टोटल 5.13 करोड़ हैं लंबित, उसमें 70% मुकदमे आपराधिक मुकदमे 3.59 करोड़। तो उन मुकदमों के जल्द निपटारे के लिए सरकार किस तरीके से, क्योंकि सरकार उसमें पक्षकार है जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से, कैसे उसमें होगा, तो नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी को सही तरीके से अमल में करने की जरूरत है। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, और राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे पुलिस को हो चाहे अदालतों को हो, तो राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करते हैं, कोर्ट नहीं देते हैं, पुलिस को मदद नहीं देते हैं, तो ये कैसे होगा। जो तीसरी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पुलिस वाला गलत तरीके से एफआईआर दर्ज करे या एफआईआर दर्ज नहीं करे, उसकी जब तक कानूनी जवाबदेही, जिसके लिए कानून में प्रावधान है, उन कानूनी प्रावधानों को अमल में लाने की जरूरत है। और चौथी बात, जो मजिस्ट्रेट और जज गलत तरीके से रूटीन कोर्स में जो मुकदमों को आगे बढ़ाते हैं, अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनको किस तरीके से संविधान और कानून के प्रति जवाबदेह बनाया जाए। जब तक, क्योंकि कानून बनाने से ही बदलाव नहीं आते हैं, बदलाव मनुष्यों से आते हैं, जो सिस्टम को चलाते हैं उससे आते हैं। और अंबेडकर ने भी कहा था कि संविधान कितना अच्छा खराब इससे महत्वपूर्ण नहीं है, संविधान को चलाने वाले लोग कैसे हैं ये महत्वपूर्ण है। तो ये जो हमारी आपराधिक कानूनी व्यवस्था है या जो पूरी न्यायिक व्यवस्था है, इसमें वकील, पुलिस, जज और सरकार किस तरीके से चीजों को करती है, इससे ही इन कानूनों का सही असर देखने को मिलेगा। यशवर्धन जी, अब चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी मैंडेटरी कर दी गई है, लेकिन पुलिस के पास वो वेयरविदल्स, वो इक्विपमेंट्स अभी तक नहीं है। क्या आपको लगता है कि इन कानूनों को भी वैसे ही जल्दबाजी में लागू कर दिया गया जैसे जीएसटी?
जल्दीबाजी में तो बिल्कुल लागू किया गया है, क्योंकि देखिए सरकार ने भी ये कहा है कि हम ये अपेक्षा करते हैं कि करीब 5 साल लगेंगे हम पूरी तरह से इस व्यवस्था को लाने में। अब 5 साल में ये जितनी टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि फॉरेंसिक साइंस, करीब 813 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे यहाँ। 813 डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट में आपको फॉरेंसिक साइंस की टीम्स चाहिए, छोटे मोटे लैब्स चाहिए, ताकि सारी चीज़ें नहीं जाएं सेंट्रल फॉरेंसिक लैब में। तो इसके लिए आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। क्या वो सेंट्रल मॉडर्नाइजेशन ग्रांट से आएगा, इनके स्पेशल स्कीम से आएगा, या वो राज्य सरकार के पैसे से आएगा? अब सबसे बड़ी समस्या आज ये, जैसे कि आपने पहले कहा, कि पुलिस जो है स्टेट बजट में है, लेकिन सुरक्षा के नाम पे जो बजट का जो एलोकेशन होता है स्टेट में, वो बहुत कम होता है। और ये मैं नहीं समझता अभी भी राज्यों के लिए पुलिस प्राथमिकता में वो बजट के रूप में आती है, और इसलिए वो पैसा अगर नहीं मिलेगा तो ये लंबा बढ़ता जाएगा अवधि, और इससे हमें बहुत भारी समस्या होने वाली है। बल्कि मैं तो और कह रहा हूँ कि अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट ने सीसीटीवी इंस्टॉलेशन के बारे में कहा था, वो काम भी अभी पूरा नहीं हुआ है, और अन्य भी सारी चीजें हैं, क्योंकि इसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की बात हो रही है, इसमें क्राइम सीन के मैपिंग की बात हो रही है, जहां पर कि गंभीर प्रकरण है। तो इसके लिए तो एक बहुत बड़ा इसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और उसको लगाने में बहुत समय लगेगा, पैसे भी खर्च होंगे, ट्रेनिंग भी लगेगी। जी हाँ। तो अभी तक इन्होंने जब इक्विपमेंट्स दिए ही नहीं, तो कैसे कोई वीडियोग्राफी करेगा? तो इसका मतलब कि, और ना ही उसका कोई प्लान बना है अभी, किस फेज्ड आउट प्लान। तो ये जो कानून लागू हो गया है, लेकिन एविडेंस आप गैदर नहीं कर सकते, तो इसका कोई मतलब रह गया है इन कानूनों का? इसलिए सबसे पहले इस क्रिमिनल लॉ को बनाने के पहले इसे 5 प्रोफेसरों को नहीं देना चाहिए था, कानून लॉ कमीशन को देना चाहिए था। लॉ कमीशन ये सारी चीजें देखता, लॉयर से बात करता, पुलिस वालों से बात करता। सिर्फ पार्लियामेंट कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी में बैठने से ये नहीं होता है। इसके लिए तो बड़ी प्रॉपर समीक्षा चाहिए। यही अभी गुप्ता जी ने भी यही कहा था इस बात को सबसे पहले। जैसे अभी आप विराज जी कह रहे थे कि पेंडेंसी, केशवर्धन जी भी कह रहे थे पेंडेंसी बहुत है, तो क्या ये नए कानूनों के आने के बाद कन्विक्शन रेट जो है कुछ बेहतर होगा, या वैसा ही चलेगा कि लाखों लाख और पेंडिंग होते चले? देखिए, मैं तो इन कानूनों के बाद एक बहुत बड़े पैमाने पे एक देशव्यापी कानूनी और न्यायिक अराजकता का एक दृश्य देखने को मैं एक परिकल्पना कर रहा हूं। उसके 2-3 वजहें हैं। पहली वजह ये है कि अदालत में जो पुराना मुकदमा होता है उस पर पहले फैसला होता है, जो नया मुकदमा होता है उस पर बाद में फैसला होता है। तो निश्चित तौर पर जो पुराने मुकदमे हैं 3.59 करोड़, उन मुकदमों पे पहले सुनवाई होगी। जब उनमें पहले सुनवाई होगी तो जिन कानूनों में जो टाइम बाउंड जो एक प्रोसीजर दिया उसको कैसे फॉलो करेंगे, ये पहली बात है। क्योंकि पुराने मुकदमे पुराने तरीके से चलेंगे, नए मुकदमे नए तरीके से चलेंगे। ये ड्युअलिटी ऑफ लॉ जो अंग्रेजों के समय में प्लासी युद्ध के बाद जो बंगाल में जो एक सिस्टम बना था, वो ये सिस्टम यहाँ पे नहीं चलेगा। ये एक मैं पहली समस्या देखता हूँ। दूसरी समस्या कन्विक्शन रेट की जब आप बात करते हैं, कन्विक्शन रेट में 2 प्रॉब्लम है। पहला कि आप जब फर्जी एफआईआर या फर्जी मुकदमा बनाते हैं, क्या होता है कि एक मुकदमे में 10 लोगों को वो शामिल कर लेते हैं एफआईआर में। अपराध एक व्यक्ति ने किया है, लेकिन उनके कंप्लेनेंट के बेसिस पर 9 लोगों को शामिल कर लिया। उन 9 लोगों के खिलाफ आपके सबूत नहीं रहते, तो उन 9 लोगों के बेसिस पे बाकी 10वां व्यक्ति भी छूट जाता है। तो आप जबरदस्ती उनको मुकदमा नहीं थोप सकते हैं। ये दूसरी दिक्कत है। कन्विक्शन रेट की तीसरी दिक्कत है कि प्रोसीजरल आपकी डिस्क्रिपेंसीज होती हैं। आप तरीके से समय पे एफआईआर दर्ज नहीं करते, समय पे सबूत नहीं इकट्ठा करते हैं, उनके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तरीके से नहीं होती हैं, आपके गवाह हॉस्टाइल हो जाते हैं। जो विटनेस प्रोटेक्शन के लिए हमने जो कानून बनाने के लिए सोचा था, उसको हमने अभी तक लागू नहीं किया है। इस कानून के अनुसार पॉक्सो जैसे कई कानूनों में बदलाव करना है, जो अभी तक बदलाव नहीं किए गए हैं। तो ये जो कन्विक्शन रेट या जल्द न्याय के बारे में जो किताबी जो इसमें ज्ञान दिए गए हैं, जो कागजी प्रावधान किए गए हैं, वो सिर्फ कागजों में ही रहेंगे। इन कानूनों से एक बड़ी समस्या ये आई है कि देश में 150 सालों में जो आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी थी पुलिस, वकील, जजों की, वो जानकारी बहुत कम लोगों की थी, और वो जानकारी भी शून्य के स्तर पर आ गई है नए कानूनों के बाद। अब जानकारी को कैसे हम नई जनरेशन को टेक्नोलॉजी के साथ कानूनों की भी जानकारी हम दे सकेंगे, तो मल्टीपल फील्ड में चैलेंज से लोग जैसे इसको इस तरह समझिए कि कोई आदमी कहीं पर जाए और अपने कपड़ों को ही संभालता रहे और उसकी मुख्य जो बात है वो बात नहीं रह जाए,
तो अब पूरे कानून को ही संभालने में बात लगी रहेगी, न्याय और जो मुकदमे हैं वो तो नेपथ्य में चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये कानून बहुत जल्दबाजी में, बहुत हड़बड़ी में बनाए गए, पुरानी संसद ने पारित किए, चुनावों के जस्ट बाद 1 जुलाई को लागू कर दिए गए। इनके लिए एक फेज्ड मैनर में, जिस तरीके से सरकार आज जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो स्टॉक मार्केट की कंपनियां हैं, जो टेक कंपनियां हैं, जो फिनटेक कंपनियां हैं, उन कंपनियों को सरकार तमाम तरह की मदद देती है, उनको फेज्ड मैनर पे उन पर कानून लागू होते हैं। तो जो कानून पूरे भारत के आम जनता पर लागू होने, उनको इतनी तरीके से लागू करने की क्या जरूरत थी? मुझे लग रहा है कि ये एक कहीं ना कहीं से इससे एक बहुत बड़े पैमाने पर अदालतों में एक अराजकता होगी, जिससे हो सकता है कि न्याय की अवधि और बढ़ जाए। Just now you talked about sedition law coming from backdoor. Maybe there's something about terror laws in the same line. I just wanted to know, there's a lot of talk during last few years on the laws to hound politicians, rival politicians through ED and CBI and income tax. So will these new criminal laws impact or give relief to politicians or such hounding? I think that's a very, very serious question you've asked, and a very, very pertinent one. You see, as I said earlier, it's bad politics which is driving the entire system. And you see for example, the law, PMLA. PMLA as a law is a kind of a tribute to an acceptance of the UN, a fight against terror money, against terrorism, finance, etc., etc. Therefore, in the other countries also, the laws have been very strong. But as you said, it is the applicability of the law and who uses the law and how he uses the law. Now, in this particular case, you have again defined those same things like terrorism, the organized crime, which is there. So there is an option for a police officer whether to use the UAPA or whether to use the BNS. Now, why shouldn't he use the BNS? Because there are no safeguards required as they are required for the UAPA. So definitely there is the scope, and how he will be driven by bad politics. Because per se, a policeman, why should he have anything against any politician or anybody? Doesn't. Because he is directed by the bosses. And that is why I always say that the tool which will implement the criminal law, that needs a reform. Mr. Gupta also said the same thing, that unless you bring in those kinds of reforms in the police, unless you bring in a proper prosecutory system to improve, how will you implement these criminal laws? And therefore, that problem will remain. And in fact, I think it will become a serious problem, which he even hinted that later on this will be used by the other people, for example, sedition. Tomorrow, if you're doing a protest against the government and one stone goes somewhere, it can be interpreted that you are against the government, against the unity of the country, and you can be put under that. But can unity of the country, or rather a criticism of the government of the day, can that be interpreted as an attempt to break the unity of the country? Never. The Supreme Court has said it, that it has to be impactive. In fact, it has to be that imperative that it is causing a rebellion immediately. Arundhati Roy did something 14 years back. UAPA has been put today. Now, this is not done. So these things are obvious. And that's why this play will remain within the system. Unless there are certain things, there are so many things can be pointed out, but even in the small crimes, organized crime, the petty crimes, which will be treated as organized crime, it is written one line, and similar acts. What is similar acts? How is it defined? And if the punishment is 10 years, then how does it remain petty? There are many things which need to be improved in this and to be looked at if we look at it in detail, clause by clause. And that is what is required, which even Mr. Gupta also said.
विराट जी, चूंकि ये कानून लगभग बिना किसी डिबेट के, बिना किसी कंसल्टेशन के पास हुए हैं, और जैसा हम अभी इतनी देर की चर्चा में हमने देखा कि इतने ढेर सारे लैक्यूने हैं, तो क्या ये कानून अपना पर्पस सर्व कर पाएंगे? क्या इन्हें खारिज कर दिया जाना चाहिए था, या देश की कानून व्यवस्था में, मतलब देश की सर्वोच्च अदालत में अगर इन चैलेंज किया जाए, कैन दे स्टक डाउन? नहीं, वो स्टेज निकल गई है, क्योंकि चैलेंज उनको किया गया था और चैलेंज के समय उनको स्वीकार नहीं किया गया है, और टेक्निकल ग्राउंड पे कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं कि इनका नाम आर्टिकल 348 के साथ हिंदी अंग्रेजी सारी बातें, वो बड़ी एक दिखावटी टाइप के चैलेंज हैं। अगर हम इसको बहुत ही ब्रॉडर पिक्चर में देखें, तो ब्रॉडर पिक्चर में अगर संविधान के नजरिए से देखें तो संविधान में दो बातें हैं। पहली बात कि आप बेवजह किसी को हिरासत में नहीं रख सकते हैं, इसमें 24 घंटे हिरासत में रखने का प्रावधान है। दूसरा, एक स्वतंत्रता की जो बात है, फ्रीडम की जो बात है, वो फ्रीडम की बात भी कहीं ना कहीं इससे बाधित हो रही है अगर आप संविधान के नजरिए से देखें। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के नजरिए से देखें तो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के सैकड़ों महत्वपूर्ण जजमेंट हैं, जिनको इनडायरेक्टली कुछ को इसमें शामिल किया गया है, वो चाहे ललिता कुमारी हो, चाहे डीके बासु है, दूसरे जजमेंट्स हों। लेकिन एक अध्ययन नहीं किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं लॉ ऑफ लैंड्स होते हैं, तो वो लॉ ऑफ लैंड को हम इसमें इनकॉर्पोरेट करते, उसमें चर्चा करते, वो हमने इसमें चर्चा नहीं करके उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। अगर हम उसको नए जमाने की डिजिटल इकोनॉमी अगर हम के हिसाब से देखें, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से देखें, तो एक ऐसा देश जहां पर ज्यादा क्राइम दर्ज होते हैं, जहां पर क्रिमिनल लीगल सिस्टम पे ज्यादा जोर होता है, वो कोई बहुत अच्छी इकोनॉमी नहीं माना जाता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स उन सारी चीजों को बहुत पसंद नहीं करते हैं, उस लिहाज से भी ठीक नहीं है। और चौथे नंबर पर कि हमारा मंशा थी कि हम साम्राज्यवादी कानूनों को रद्द करके नए जमाने के गणतंत्र भारत के हिसाब से कानून बनाएं, लेकिन ये कानून जिस तरीके से बने हैं तो उस तरीके से वो अंग्रेजों के समय के बने थे, लेकिन इसमें भी हम जो आम जनता को देशी तरीके से ही ट्रीट कर रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि जो गणतंत्र और संविधान की जो भावना है, जिसके तहत वी द फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल जो है, वो जनता के लिए इसमें जो एम्पावरमेंट होना चाहिए कि आपको अगर गलत मुकदमे में फंस गए हैं तो आपको जल्द न्याय कैसे मिले। अगर किसी पुलिस वाले ने गलत मुकदमा दर्ज कर दिया है तो पुलिस वाले के खिलाफ दंड कैसे हो। एक जज ने आपका मुकदमा आंख मूंद करके नोटिस इशू कर दिया या चार्ज फ्रेम कर दिया, तो उसके बाद आप पूरे जिंदगी भर ट्रायल से कैसे आप उससे मुक्त हों। इन सारी चीजों का जब तक जनता को अधिकार नहीं मिलेगा तो ये कानून अपना जो पर्पस है वो पर्पस विफल हो जाएगा। और ये बहुत ही, मैं इसको जब सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने के बाद मैं मानता हूं कि प्रतिगामी कानून है, एक अच्छे मकसद से बनाए गए, एक गलत तरीके से जो लागू किया जाना, एक अब इनको मुझे नहीं मालूम है कि इनको क्या आप वापस ले सकते हैं या वापस लेना चाहिए या इनमें बदलाव करना चाहिए या राज्यों को उस लाना चाहिए। एक नेशनल एक चैलेंज है, एक नेशनल, इसको राजनीतिक मकसद से नहीं, लेकिन सारे दलों को एक साथ आकर के इसको ट्रैक में लाने की जरूरत है। और इसमें एक और चीज है, चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सारे चीफ जस्टिस को, उसमें कई बार राज्यों को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी भाग लेते हैं, तो इसमें सारे लोग एकमत हों जिससे कि जो पटरी में ये गाड़ी आ जाए। So I think it was a very comprehensive discussion on almost all aspects of new criminal laws, and I think the viewers have a lot of takeaways from this discussion. And thank you very much, sir, both of you, for coming to our studio, for taking time out from your busy schedules. And please stay informed, stay curious, and stay tuned. Keep watching Indian Masterminds. We'll keep bringing you a lot of such videos. Thank you. Thank you.